Hello students. Today's topic is separation of mixture, and in separation of mixture we have to study about separation of two or more liquids. If your the two liquids are miscible into each other, then what we have to do? And if the two liquids are immiscible, mix nahi kar rahe hain, then what you have to do? If the two liquids are miscible, then you have to use fractional distillation, and we have to see it. And also, if the two liquids are immiscible, nahi mix karenge, then you can separate by using separating funnel. So we are going to know about how we will do fractional distillation. First, we will know definition of fractional distillation. Actually, it is just similar to distillation. The basic principle is same as the distillation. But only the difference in fractional distillation and distillation is that in this simple distillation, you can distill the two liquids at different temperature if the difference in boiling point is greater than 25 degrees C. But if the difference in boiling point is less than 25 degrees C, then you have to go through fractional distillation. So, very simple definition of fractional distillation, it is written here. Fractional distillation is the process of separating two or more miscible liquids by distillation. Distillation द्वारा हम अलग करते हैं. And the distillate being collected in fraction boiling at different temperature. जो लिक्विड्स होंगे वो अलग अलग फ्रैक्शन में हम कलेक्ट करेंगे अलग अलग बॉइलिंग टेम्परेचर पे. Okay, so this one is your definition of fractional distillation, the process of separating two or more miscible liquids by distillation. Distillation ही हम कर रहे हैं, and the distillate being collected in fractions boiling at different temperature. That you have to write. Now, the basic principle, just similar to distillation, the two liquids, the separation of two liquids by fractional distillation depends upon the difference in their boiling point. You all are knowing. तो simple distillation का ही basic principle है. The liquid whose boiling point is less, that will distill first. Okay. Now in fractional distillation में apparatus क्या use होंगे? All which we had used in simple distillation. Only the extra apparatus is that one is the fractional distillation. ये fractional distillation ही एक extra है. Rest are same. Distillation flask, Liebig condenser, okay, Liebig, LIB, Liebig condenser, receiver, thermometer, stand, burner. बस यही आपका एक extra है. तो fractional column को समझ लें. What is the fractional column? Apparatus को कैसे arrange करेंगे इसको समझ लें. Then everything will be clear. What is here written? फ्रैक्शनल कॉलम क्या है? पहले फ्रैक्शनल कॉलम पहले इसका डिजाइन देख लो, एपरेटस को देख लो तो बातें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी. दो पिक्चर मैंने तुम्हारे लिए फ्रैक्शनल कॉलम के लिए डाला है. दिस वन इज वन फ्रैक्शनल कॉलम एंड दिस वन इज सेकंड फ्रैक्शनल कॉलम. फर्स्ट फ्रैक्शनल कॉलम in it is a long glass tube. Okay, your fractional column is a long glass tube containing shaft. shaft है ये देखो. ये क्या है? ये जो ये बना हुआ मेरा ये मिट गया. ये जो मैंने इस तरह से बना के रखा है ये क्या है? सैफ्ट है. ग्लास का ही बना रहता है, सैफ्ट का बना रहता है बच्चों. और यहाँ ग्लासी बीड्स है. दोनों में बस अंतर यही है. सो व्हाट इज ए फ्रैक्शनल कॉलम? इट इज ए लॉन्ग ग्लास ट्यूब. लंबा सा ग्लास का ट्यूब रहता है, काफी लंबा रहता है. ओके, और इनसाइड इट वी हैव आइदर ग्लासी बीड्स और सैफ्ट. सैफ्ट मतलब खांच. इस तरह की खांच बनी हुई है. इस तरह से ये खांच बनी हुई है. ओके, एंड इट हैज सम फंक्शन. इसका फंक्शन होगा नो डाउट. एक्चुअली सैफ्ट और ग्लासी बीड प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया फॉर कूलिंग द टू कूल द हॉट वेपर्स. हॉट वेपर्स को अधिक सरफेस एरिया मिले ठंडा होने के लिए, अधिक समय मिले ठंडा होने के लिए. ठीक है ना, अधिक समय मिले ठंडा होने लिए, इसके लिए ये प्रोवाइडेड रहता है सैफ्ट. ठीक है ना, इसके लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं. नाउ लिसन, व्हाट इज द डेफिनेशन?
फ्रैक्शनल कॉलम कैन बी रिगार्डेड एज एन अरेंजमेंट, एक व्यवस्था है। ग्लास ट्यूब यूज़ किया जिसमें सैफ्ट रखा और इसके द्वारा एक ऐसी व्यवस्था की गई जिससे कि उस कॉलम के अंदर डिफरेंट टेम्परेचर जोन क्रिएट हो जाए, डिफरेंट टेम्परेचर एरिया वाले स्पेसेस हो जाएं, प्रोवाइडिंग डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स इनसाइड इट ड्यूरिंग डिस्टिलेशन। तो कहने का मतलब कि ये जो लॉन्ग ग्लास ट्यूब है, व्हेन यू आर डूइंग डिस्टिलेशन व्हाट विल हैपन, जब डिस्टिलेशन करते हैं तो यहाँ डिफरेंट टेम्परेचर जोन क्रिएट हो जाता है, अलग अलग। यहाँ कुछ टेम्परेचर होगा इस रीजन में, कुछ और टेम्परेचर होगा इस टेम्परेचर, और चूंकि हम लोग गर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सोर्स से, जो हीटिंग सोर्स है से ये नज़दीक है, तो ये पोर्शन हमारा नो डाउट इस पोर्शन का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, उससे कम यहाँ का होगा, फिर उससे कम यहाँ का होगा। And no doubt you can say that in this manner you can say that different temperature zone will be created. Okay, so your fractional column is an arrangement which provides different temperature zones inside it, अपने अंदर different temperature zone create कर लेगा when you are carrying out distillation. And no doubt the highest temperature being at the bottom के पास highest temperature होगा और lower part में lower temperature of the will be at the top of the column. तो इस बात को हम लोग देखेंगे भी, पिक्चर में मैंने इसको शो किया है, यानी जो गर्म कर रहे हैं तो ये बॉटम पार्ट ये हो गया, दिस वन इज योर बॉटम पार्ट एंड दिस वन इज योर टॉप पार्ट। बॉटम पार्ट का टेम्परेचर हाई होगा और इसका टेम्परेचर लो होगा। So this one is your fractional column. Sometimes you are asked what do you mean by fractional column. So you can say that fractional column is an arrangement which provides different temperature zone during the distillation. Okay, and highest temperature will be at the top part of the bottom part of the column and lower temperature will be at the top part of the column. Okay, I think it is clear for you. Now let us see, this one is your apparatus. ये apparatus इस तरह का हमारा है, पहले apparatus करें तब तो स्टेप्स में जाए। देखो apparatus, सारा apparatus तुम्हारा देखो सेम है, मैंने कहा था डिस्टिलेशन फ्लास्क है बच्चों, ये डिस्टिलेशन फ्लास्क है, स्टैंड वगैरह वायर गॉस सब देख रहे हो। ओके, दिस वन इज रिसीवर, और क्या देखोगे, ये देखो दिस वन, इसको देखो लिविक कंडेंसर है, दिस वन इज योर लिविक कंडेंसर, दिस वन इज योर लिविक कंडेंसर। एक्स्ट्रा एपरेटस क्या है, यही फ्रैक्शनल कॉलम। फ्रैक्शनल कॉलम ही एक एक्स्ट्रा एपरेटस है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, और टेम्परेचर जोन देखो क्रिएट करके दिखाया गया। चलिए अब स्टेप वाइज इसको समझेंगे, पहले इसको रब कर देते हैं। होल एपरेटस ऐसा है देखो, इसी तरह की का अरेंजमेंट हमें फिट करना होगा। डिस्टिलेशन फ्लास्क लेंगे, इन डिस्टिलेशन फ्लास्क यू हैव टू टेक द मिक्सचर, लिक्विड मिक्सचर। ओके, और इसी को हम लोग स्टैंड पर रखेंगे गर्म करने के लिए। उसके ऊपर किसको अरेंज करेंगे, फ्रैक्शनल कॉलम, एंड फ्रैक्शनल कॉलम नो डाउट विल बी कनेक्टेड विद द लिविक कंडेंसर। लिविक कंडेंसर से ये कनेक्टेड है और लिविक कंडेंसर का एंड के पास हम लोग रिसीवर रखेंगे। सो दिस वन इज अरेंजमेंट ऑफ द एपरेटस, इस तरह से फिट करते हैं ना। वन बाय वन होगा क्या, स्टेप वाइज देखो, इसको देखो और फिर हम लोग बैक होंगे। सपोज कर लो वी हैव टू सेपरेट द अल्कोहल एंड वाटर, and you are knowing the fact that boiling temperature of alcohol is 78 degree centigrade and water is 100 degrees C. lower boiling temperature alcohol का है और higher temperature water का है। now what you have to do, इन दोनों इस मिक्सचर को अल्कोहल एंड वाटर को कहाँ रखेंगे भाई, डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर डाल देंगे, रबर कॉर्क से फिट कर देंगे और उसके ऊपर फ्रैक्शनल कॉलम फिट करना है। ठीक है, लेकिन फ्रैक्शनल कॉलम फिट करने के पहले ही इसको हम लोग ट्राइपॉड स्टैंड पर रख देंगे।
और उसके बाद सारा अरेंजमेंट करेंगे। यहाँ देख, यहाँ लिक्विड मिक्सचर यहाँ रखा, सबसे फर्स्ट स्टेप लिक्विड मिक्सचर डिस्टिलेशन फ्लास्क में रखा, उसके बाद इसको स्टैंड पे रख दिया। स्टैंड पे रखने के बाद ये फ्रैक्शनल कॉलम एडजस्ट करते हैं, फ्रैक्शनल कॉलम एडजस्ट करके तब लिविक कंडेंसर एडजस्ट करते हैं, और स्टैंड की मदद से इसको फिट भी कर सकते हैं। स्टैंड इसमें नहीं दिया, स्टैंड की मदद से इसको हम लोग फिट भी करते हैं। ओके, लिविक कंडेंसर को भी हम लोग स्टैंड की मदद से फिट कर सकते हैं। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू, यू हैव टू स्टार्ट हीटिंग। हम लोग करेंगे क्या, मिक्सचर को हीट करना। फर्स्ट स्टेप प्रोसीड्यूर में व्हाट वी आर डूइंग, फर्स्ट वी विल हीट द मिक्सचर। एज यू हीट द मिक्सचर बोथ लिक्विड विल फॉर्म वेपर्स एंड राइज अप। कहाँ राइज करेगा, डिस्टिलेशन फ्लास्क में ऊपर चढ़ा, डिस्टिलेशन फ्लास्क से ऊपर चढ़ने के बाद फ्रैक्शनल कॉलम में पहुंचेगा, राइज अप इन द फ्रैक्शनल कॉलम। अब ये जो फ्रैक्शनल कॉलम तुम्हें शो कर रहे हैं, इसमें यहाँ सोचो, थोड़ी बात यहाँ क्लियर होनी चाहिए। ये गर्म कर रहे हैं हम लोग इस तरह से, यहाँ नीचे से गर्म कर रहे हैं, ये यहाँ का पोर्शन ये गर्म हो रहा है, ये भी गर्म हो रहा है, लेकिन नो डाउट यहाँ का टेम्परेचर नो डाउट ज़्यादा होगा, हाई टेम्परेचर होगा यहाँ पर, मोर टेम्परेचर यहाँ लो टेम्परेचर होगा, ऊपर की तरफ लो होगा, उससे ऊपर और लो होगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस गर्म कर रहे हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, तो इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि फ्रैक्शनल कॉलम विल बी कूलर पार्ट। हॉट वेपर्स यहाँ से जब गर्म किए तो हॉट वेपर्स यहाँ से राइज कर रहा है, फ्रैक्शनल कॉलम में जा रहा है, फ्रैक्शनल कॉलम में ऊपर दोनों वेपर्स राइज करता है। And as the fractional column we are considering, and it is the fact that it is cool, ये गर्म है और यहाँ भी ठंडा है। स्टार्टिंग में शुरू में जैसे जैसे हम लोग कर रहे हैं तो ये ठंडा है। What will happen? The vapors will get condensed. कूलर पार्ट में वेपर्स क्या होगा, यहाँ कंडेंस करेगा and liquefy them and trickle down। क्या होगा, ट्रिकल डाउन, वापस लौट जाएगा। ठीक है, दोनों का वेपर राइज करेगा, वेपर ऊपर राइज करेगा, बट एज द फ्रैक्शनल कॉलम विल कूलर पार्ट, ठंडा हुआ है, अभी उतना सफिशिएंट गर्म नहीं हुआ है, वेपर को वेपर स्टेट में रहने लायक सफिशिएंट नहीं टेम्परेचर है। सो द वाटर वेपर्स एंड द अल्कोहल वेपर्स बोथ विल कूल डाउन एंड both will cool down and get condensed, liquefy and trickle down. It is written here. So listen, see here. As the upper part of the fractional column is cooler, ठीक है, ये ऊपर चढ़ा, नीचे का पार्ट मैंने कहा कि गर्म होगा, उससे ऊपर का और उसके रेस्पेक्टिव में ठंडा होगा, तो कूलर पार्ट है। द हॉट वेपर गेट कंडेंस, दोनों के वेपर क्या होंगे, कंडेंस कर जाएंगे, एंड ट्रिकल डाउन, क्या करेगा, ट्रिकल डाउन कर जाएगा। ये दोनों एक साथ है, ट्रिकल डाउन, ओके, ट्रिकल डाउन इनटू द कॉलम में नीचे वापस लौट जाएगा। अब कंटिन्यू कर रहे हैं हीटिंग। एज द फ्रैक्शनल कॉलम इज वार्म्स अप बाय हीट रिलीज्ड बाय द हॉट वेपर्स, द टेम्परेचर जोन इज क्रिएटेड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। दोनों के वेपर ऊपर राइज कर रहे थे, कंडेंस किए क्योंकि कूलर पार्ट उसे मिला, कंडेंस किए, बट हीट रिलीज कहाँ गया, फ्रैक्शनल कॉलम में। सो द फ्रैक्शनल कॉलम विल वार्म अप, फ्रैक्शनल कॉलम वार्म अप हो जाएगा, हीट रिलीज बाय द हॉट वेपर्स and as a result temperature zone is created, and no doubt in the column, and no doubt temperature of the bottom part will be much more than the top part का टेम्परेचर कम होगा, बॉटम पार्ट का फ्रैक्शनल कॉलम का टेम्परेचर ज़्यादा होगा बच्चों। इज इट क्लियर? तो इस तरह से टेम्परेचर जोन क्रिएट हो जाता है। नाउ ए टाइम विल कम, हम हीट करते ही जा रहे हैं, temperature of the top column reaches to 78 degrees C, that we can see in thermometer। थर्मामीटर में हम देखेंगे कि 78 डिग्री सेंटीग्रेड टॉप पार्ट का हो गया। In that situation all alcohol vapors will be pass into the condenser, water condenser। जब इस कॉलम का टेम्परेचर, यहाँ देखो बातें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, पिक्चर की मदद हमेशा यहाँ ज़रूरत है।
जब इस कॉलम का गर्म करते जा रहे हैं, क्या कहा था कि लोअर पार्ट का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, चलिए गर्म कर रहे हैं। हेयर योर टेम्परेचर इज 80 डिग्री सी, सी दिस, योर टेम्परेचर इज 80 डिग्री सेंटीग्रेड, 79 डिग्री, 78 डिग्री, यानी ये ऊपर पार्ट में ये टेम्परेचर 78 डिग्री सी है। And you are all knowing that boiling temperature of alcohol is 78 degrees C. So no alcohol vapor will condense here. अब यहाँ alcohol vapor, water vapor दोनों पहुँचा। Temperature as the temperature is 78 degree centigrade, no alcohol water vapors will be get condensed. कोई अल्कोहल का वेपर कंडेंस नहीं करे, बट वाटर वेपर कैन कंडेंस, इट विल गेट कंडेंस, ट्रिकल डाउन, लिक्विड वाटर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होके नीचे वापस लौट जाएगा। लेकिन वाटर वेपर विल, व्हाट विल हैपन, द वाटर वेपर विल, द वाटर वेपर अपर पार्ट में मेरा 78 डिग्री सी टेम्परेचर है, इसको और क्लियर से देखो, ये नीचे आ जाओ भाई, नहीं आ रहा है इतना, एनीवे यहाँ कर दे रहे हैं, देखो ये वाटर वेपर यहाँ अल्कोहल का है, 78 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, द वाटर वेपर विल मूव हेयर, देख रहे हो मूव कर रहा है, एंड हेयर इज वाटर जैकेट, it will cool down by cold water, get liquefy in this tube, and now you can collect it. ये अल्कोहल का ड्रॉपलेट्स है, ये अल्कोहल का ड्रॉपलेट्स है, अल्कोहल, यू आर कलेक्टिंग अल्कोहल है, वाटर अल्कोहल वेपर यहाँ आया, कंडेंस किया वाटर जैकेट में और लिक्विफाई होके यहाँ पहुँच गया, एंड वी आर कलेक्टिंग इट। इन दिस मैनर वी कैन कलेक्ट द अल्कोहल एज ए फर्स्ट फ्रैक्शन के फॉर्म में हम लोग अल्कोहल को कलेक्ट कर लिए। अब क्या करेंगे भाई, अल्कोहल तो कलेक्ट हो गया, टेम्परेचर और वाटर कब कंडेंस होके हमारे पास सेकेंड फ्रैक्शन में कलेक्ट होगा, ठीक है, वाटर कब होगा, you have to increase the temperature. What you have to do, you have to increase the temperature. अल्कोहल जब हम कलेक्ट कर लेते हैं, then you have to increase the temperature, 100 डिग्री सी टेम्परेचर हम कर लेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे। और वन थिंग मोर, as long as you are receiving alcohol, you have to maintain the temperature 78 degree C, otherwise it will become wrong. ज़्यादा कर दोगे प्रॉब्लम हो जाएगी, गलत हो जाएगा, वाटर वेपर भी कलेक्ट हो सकता है। ओके, एज लॉन्ग एज यू आर कलेक्टिंग अल्कोहल, एक टाइम पीरियड देंगे, समय देंगे कि सारा अल्कोहल वेपर बन के कन्वर्ट होके लिक्विफाई होके कलेक्ट हो जाए फर्स्ट डिस्टिलेट फॉर्म में। When we collect the alcohol completely, then temperature is increased, water vapor passes into condenser and collected into receiver. तो इस तरह से हम लोग दोनों लिक्विड को रिसीव कर लेते हैं। इज इट क्लियर? तो दोनों लिक्विड मिक्स नहीं करता है। नाउ फाइनली लेट अस सी एप्लीकेशन का, क्या क्या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का एप्लीकेशन है। यू कैन यूज इट टू सेपरेट द क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम को हम सेपरेट करते हैं, पेट्रोलियम के कई कंपोनेंट्स है, फॉर एग्जांपल केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, सबको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। सेकेंडली यू कैन यूज टू सेपरेट द गैसेज ऑफ एयर, जो ये एयर है इसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, एक्सेट्रा, वाटर वेपर, हम एयर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। कैसे भाई, पहले लिक्विफाई करना होगा, एंड दैट वी विल सी इन नेक्स्ट क्लास। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।